پاکستان کو فائدہ پہنچے گا. خوشحالی اگر ہوگی تو پورے پاکستان کی خوشحالی ہوگی. دس از ایگزیکٹلی دا کائنڈ آف پرسپیکٹو جس کو سامنے رکھ کر ہمیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے ہمیں بات کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو ابھی جو بات کی محترمہ نے کہ بلوچستان میں میٹرو ہونی چاہیے, تو آپ کو میں یہ آج کی تقریب کے حوالے سے خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر نواز صاحب نے آلریڈی سی پیک میں کوئٹہ میں 42 کلومیٹرز کا میٹرو کا منصوبہ اس میں ڈلوا دیا. اور یہ انشاءاللہ سی پیک کی جو ایک جیسی ہو رہی اسی مہینے کے اینڈ میں بیجنگ میں, اور یہ منصوبہ اس میں ہم دیکھا کرے تھے. اب وہ 42 کلومیٹر ہے. اب جو لاہور کی جو اورنج لائن ہے وہ 27 کلومیٹر ہے. اب اور لاہور کی جو آبادی جو ہے وہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. تو کوئٹہ جو ہے اس شہر کی آبادی لاہور سے کہیں کم ہے, مگر وہ 42 کلومیٹر ہے. اور اس لائن میں یہ کہوں جناب بڑا شہر ہے کوئٹہ جو ہے وہ 42 کلومیٹر لاہور 27 کلومیٹر میں نہیں مانتا. کبھی اس طرح قومی ترقی کرتی ہے, کبھی اس ذہنیت سے کبھی ہم آگے ہم چل سکتے ہیں کہ یعنی جو حالات اور جو اصل جو اس کے حقائق جو ہیں اور جو اس کی ریکوائرمنٹ جو ہیں ان کو ہم ایک طرف رکھیں اور صرف جیلسی کے ساتھ جناب لاہور میں 27 کلومیٹر کیوں, یہاں پر 50 کلومیٹر ہونا چاہیے, کوئٹہ میں 42 کلومیٹر کیوں, وہاں پر 10 کلومیٹر ہونا چاہیے. This is not the way for the nations to stand up and be counted. This is not the way for societies to unite and move forward with a vision and collective effort. This is not the way to turn the tables. Tables تبھی turn ہوں گی, ترقی تبھی ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو ایک کنبے کی طرح اپنے آپ کو اپنا شمار کریں اور یہ کہیں کہ اپنا صوبہ بلوچستان کی ترقی جو ہے وہ پنجاب کی ترقی ہے, سندھ کی جو ترقی ہے وہ KPK کی ترقی ہے, پنجاب کی ترقی ہے وہ پورے پاکستان کی ترقی ہے. سب کو اس کے اوپر اس کا حق ہے, سب کا اس کے اوپر حصہ ہے. یہ ہے وہ ویژن جس کے لیے قائد اعظم نے عظیم تحریک چلائی, حضرت قائد اعظم نے, جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا, تب جا کر پاکستان معظم وجود میں ہے, جس میں بلوچستان کی جو اکابرین منسٹر کا انہوں نے اپنے پورا اس میں حصہ ڈالا. لہذا پاکستان کے اوپر سب کا حق ہے, کسی ایک صوبے کا حق نہیں, کسی ایک یعنی سوسائٹی کا حق نہیں, سب کا حق ہے. اور یہ جو ڈائیورسٹی جو ہے یہ اس کا حسن ہے. اگر ہماری جغرافیائی حوالے سے اپنی ہمارا کلچر ہے, ہماری زبان اپنی ہے, کوئی بروئی بولتا ہے, کوئی پنجابی بولتا ہے, کوئی سندھی بولتا ہے, کوئی پشتو بولتا ہے, کوئی بلوچی بولتا ہے, کوئی سرائکی بولتا ہے, ہمارے اپنے وہاں پر رواج ہیں. تو یہ اس کا خوبصورت امتزاج ہے, حسن ہے, اور جب اس کو آپ اکٹھا کریں تو وہ پاکستان کو حسن بنتا ہے. That's diversity. That must be respected. That must be tolerated and promoted. اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ فلاں ہے, یہ پروکیر ہے, یہ فلاں ہے. اسی نے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اصل جو ویژن ہے اس کو دھندلا کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کی جو کوشش ہونی چاہیے, آپ کا جو ویژن ہے, آپ جو محنت کر رہے ہیں, آپ ماشاءاللہ ڈاکٹرز بنیں گے, انجینئرز بنیں گے, اسٹوڈنٹ بنیں گے, ٹیچرز بنیں گے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ باقی سکوں کے ساتھ مل کر اسٹوڈنٹس ہیں, آپ اپنے ایک فورس بنائیں, اس میں سینرجی اس میں پیدا کریں, اور جو قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا جو فلسفہ تھا, ان کا ویژن تھا, اس کو پروموٹ کریں. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ ہی کے ہاتھوں, آپ ہی کی محنت کی بدولت اگلے آنے والے سالوں اور دہائیوں میں پاکستان صحیح معنوں میں قائد اور اقبال کا پاکستان بنے گا. کہ اس کے بغیر نہ کوئی اور طریقہ ہے, نہ کوئی اور اس کا سلیقہ ہے. ہم نے جو مشرقی پاکستان جو ہم نے گوایا, اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کیوں مشرقی پاکستان جو
लाइट भी आना चाहिए, उसके असबाब जो है उसके ऊपर रोशनी डालनी चाहिए, और उसके ऊपर हमें अब रोना धोना नहीं, वो बांग्लादेश बन चुका। अब इस पाकिस्तान को जिसको कायद की तारीख में बनाया गया था, इसको मजबूत करने के लिए, इसको प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, इसको प्रॉस्परस बनाने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी चाहिए, और जो गलतियां की थी उससे हमें सबक हासिल करना चाहिए। आज सोसाइटी में देखें कितनी इंतहा पसंदी आ गई है, अस्करियत पसंदी आ गई है, और किस तरह बेगुनाह लोगों को पिछले कई सालों में निशाना बनाया गया और मौत के घाट उतारा गया। ये सिर्फ और सिर्फ इंतहा पसंदी और जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीमिज्म और मिलिटेंसी, इसकी वजूहात हैं। उन वजूहात में जानना, उसको जाना इसलिए जरूरी है उसके अंदर कि हम नतीजा अखज़ कर सकें कि ऐसा हुआ क्यों कि कायद का पाकिस्तान लेट 40s में, 50s में, 60s में, 70s में बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग था, बड़ा टॉलरेंट था, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करते थे, कोई खुदा न खास्ता कद्दूवात का बाजार गर्म नहीं था, कोई ये नहीं कहता था कि अपना मारने वाला भी मुस्लिम और मरने वाला भी मुस्लिम, अल्लाह का नाम लेगा, कोई जो अक़ीदतें थी उनकी तरफ देखता नहीं था, उनको बर्दाश्त करते थे, चाहे वो ईसाई थे। 25 दिसंबर की आमद है जो हज़रत ईसा का जो यौम पैदाइश है, उसके जब वो सेलिब्रेट करते थे, मुसलमान को फैसिलिटेट करते थे कि भाई आप हमारे भाई हैं, आप बिल्कुल सुकून होकर, पुरअमन होकर आप इसको इस दिन को मनाएं। इस तरह हिंदुओं का त्यौहार थे, पारसियों के त्यौहार थे, मुसलमानों की जो मेजॉरिटी पाकिस्तान में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी उनको हमको तहफ़्फ़ुज़ देती थी। आज वो खौफ का शिकार, आज सिक्योर, ये कायद का वजन नहीं था, ये कायद का एक बात का वजन नहीं था। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे नौजवान बच्चों, आप कौम के मेहमान हैं, मुस्तक़बिल के मेहमान हैं। You are the future of Pakistan. You have to lead this country and restore its position back to what Qaid and what Allama Iqbal had stated and envisioned. उसके लिए आपने अपने आप को तैयार करना है, और जो गलतियां हमसे हुई हैं वो इंशाअल्लाह आप नहीं दोहराएंगे, और आप पाकिस्तान को एक सबस झंडे तले आप पाकिस्तान की आवाम को मुस्तक़बिल करेंगे, और इकट्ठे इंशाअल्लाह इस खुशहाली और तरक्की के सफर पर इंशाअल्लाह हम अपने मुकाम तक पहुँचेंगे। मैं चाहूँगा कि आपसे मैं रास्त गुफ्तगू करूँ, आपके सवालात मैं लूँ, उनके जवाब मैं कोशिश करूँगा कि जितनी ईमानदारी से और फैक्ट बेस्ड मैं दे सकूँ। मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज पाकिस्तान में जो इंतहा पसंदी में कमी आई है और जो मिलिट्री में कमी आई है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो 2013 में जो फैसला हुआ बिटवीन पोलिटिकल हालात की एंड मिलिट्री हालात की कि हमने ज़र्ब-ए-अज़म लॉन्च करना है, उसके लिए मिलिट्री और पोलिटिकल हालात की एक पेज पे आई, और अजीम कुर्बानियाँ दी अफ़वाज पाकिस्तान ने, अफसरों ने, सिपाहियों ने, पुलिस ने, पुलिस के अफसरों ने, सिपाहियों ने, ताज़ों ने, माओं ने, बेटियों ने, और उसकी बदौलत आज पाकिस्तान में ये भूखे ये वाक़यात हुए, बलूचिस्तान में वाक़यात हुए, लेकिन उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमी आई है। और अगर हम इसी रफ्तार पर और जुड़कर हमने इस नासूर का मुकाबला किया तो वो दिन दूर नहीं जब इंशाअल्लाह इसको हम शिकस्त पाश देंगे। लेकिन इसके लिए हिम्मत, अज़म और मुसलसल मेहनत की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको ये हिम्मत दे कि हम पाकिस्तान की हद्दुल-मक़दूर खिदमत करें और इस मुल्क को अजीम से अजीमतर बनाएं। आपका बेहद शुक्रिया। अब मैं आपके सवालात लूँगा ताकि आपसे मुझे जानने में आसानी हो कि आपके दिलों में ज़हनों में क्या चीज़ें हैं जो आपको ये कंपेल करती हैं कि वो आप शायद करें। थैंक यू वेरी मच। वेरी नाइस।
नौजवान तलबा और तालिबात सवाल करना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें, माइक तक आएगा। माइक दीजिए, माइक पर बेटा माइक पर आप माइक जी बेटी अपना नाम बताएं और सवाल करें। First of all, I want to introduce myself. Who am I? Hi, Liman Sar from Government Girls Inter College, Gawada. I want to say, first of all, a great salam to Honorable Kadmi Hala, Mia, Muhammad Shabazz Sharif, and great personality and multi-talented teachers who are sitting here. I'm very thankful to you, sir, that you've given us a golden chance and golden opportunity that we, the students, came here and visited Lao. That's a big thing because we students came from Lao, from Gwadar to Lao. There's a big distance. I think it's not that much short. It's a big distance. Long distance is there. So that's something appreciable. So we students should appreciate it, sir. There's no any words to express that all we students are happy and there's something appreciable. Thank you very much, sir. And we students want to say something and we need scholarship, sir. That we have much talent. We are educated. We live for education and we are alive for education. And I think we are nothing without education. We students are like animals that we don't get education. And that's quite clear. And you know that, sir. That if a nation will be successful, it will develop when its education problem will be solved. God, it says that God that it's developing, but I don't think so that it's developing. If its education system will not be improved. So we want that education system must be improved. And yeah, you will say so that scholarships are there, but merit level is there. So it's something very much problem is there because we students will try. We will bring us into that stage. Percentage will make it, but we will try more, but still will not compete with lower students because, sir, you people are aware of that. Balochistan education system is not that much good and improved. It will try a little bit, but it still will not compete 90%, 80%. That's problem. This merit system must be finished. Thank you very much, Bilal. Thank you. Thank you. I mean, yours is not a question, but a very inspiring statement. Thank you, sir. I mean, I really appreciate it. बिल्कुल आपके जो गवर्नमेंट है वो बड़ा अच्छा काम कर रही है। टीचिंग सर बड़ी कोशिश कर रहे हैं। सरदार सलमान जहरी साहब की तालीम को हिंदुस्तान में हम उसका फरोग दें। गवादर से जहाँ से आप आए, मैंने 1.5 साल पहले वहाँ पर एक हाई स्कूल का हमने फंडिंग की, वो माशाल्लाह तामीर उसकी हो चुकी। पीछे मैंने अपने मिनिस्टर एजुकेशन को भी वहाँ पर भिजवाया था। तो खुदा करे कि वो एक छोटी सी हकीर हमने कॉन्ट्रीब्यूशन की है, वो एक बनेगा। तो इंशाल्लाह वक्त लगेगा ये एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने में, जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर एफर्ट हो रही है, मगर जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, जिस तरह अभी मिनिस्टर हायर एजुकेशन बताया रजा ने कि हम इतने बच्चे हम सालाना बलूचिस्तान से यहाँ पर दे रहे हैं, उनको स्टाइपेंड देते हैं। पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड जो कि पाकिस्तान का नहीं बल्कि साउथ एशिया का प्रॉब्ली सबसे बड़ा तालीम के लिए एंडाउमेंट फंड है, और उसकी दो ही रिक्वायरमेंट्स है सर, एक नीड बेस्ड यानी फाइनेंशियल नीड, और दूसरा उसके बच्चे की या बच्ची की सलाहियत परफॉर्मेंस। अगर दोनों मीट करती हैं तो पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड उस बच्चे के वज़ाइफ, तालीमी वज़ाइफ मुहैया करता है। और इस वक्त 1.5 लाख बच्चे और बच्चियाँ पूरे पाकिस्तान में, पंजाब समेत बलूचिस्तान का उसमें कोटा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इससे फैसयाब हो रहे हैं। और अब तक इस फंड से 11 अरब रुपए के वज़ाइफ दिए जा चुके हैं। तो मैं
Assalamu alaikum sir. I am from Gawadar and मैं सर BSc का स्टूडेंट हूँ थर्ड ईयर. So sir सवालात तो होते रहते हैं. नाम क्या? जमाल सईद सर. सॉरी सर. सवाल तो होते रहते हैं. सबसे पहले सर आपकी पंजाब की जो मेहमान नवाजी है उसकी तारीफ के बगैर तो कुछ नहीं है सर. तो सबसे पहले सर आपके नाम मैंने एक शेर लिखी सर. सर क्या बताऊं सब स्टूडेंट जो बैठे हैं यहाँ पर एंड सब के दिमाग में कितने कितने शेर तारीफ पे हैं सर आ रही है कि सब कुछ ये कहना चाहते हैं. तो सर आप बाजी हो जाए शेर. यस सर. तो सर आपके नाम एक शेर है कि मेरे लहू में भी तेरी मेहमान की नवाजी आई. मेरे लहू में भी तेरी मेहमान की नवाजी आई. ये मोहब्बत है आपका शहबाज कि हमें गवादर से पंजाब खींच के ले आई. आपने बड़ा अच्छा कहा कि नवाजी आई, शहबाजी नहीं आपने कहा. तो सर ये यकीनन सर ये सारे स्टूडेंट जो बैठे हैं ये सबके जज्बात हैं सर. सब कुछ ये कहना चाहते हैं. सो सर ये दो तीन दिनों में सर हमें इतने विजिट कराए जा रहे हैं कि हम तक रहे हैं लेकिन वो जो विजिट करा वो नहीं तकते. इतने विजिट करा रहे हैं सर कि हमें तो ऐसा महसूस होने लगा है कि हम गवादर जैसे कि मुझे महसूस हो रहा है कि गवादर एक सैयारा है और हम जो हमारा एक जो यूएफओ है वो लाहौर में लैंड हुआ है. तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम एलियंस हैं और एलियंस का जो ख्याल है जो उसका ख्याल वो हकीकत में नहीं होता लेकिन उनके ख्याल ही की इज्जत होता है. तो हम ऐसा महसूस हो रहे हैं कि क्या बताऊं सर. एक शेर से फिर सर एक शेर सुनाने को चाहता है. थैंक यू. क्या हुआ मुझ में अगर जुर्रत इजहार नहीं. क्या हुआ मुझ में अगर जुर्रत इजहार नहीं. आप हमकों की जुबान भी तो समझते होंगे. जनाबे वाला इतनी मोहब्बत दिल तो सीने से निकाल दी. अब पूछते हो कि क्या लोगे क्या दे दूं सर. आपने सर सब कुछ ले लिया तो लूट गए सर. सर हकीकत में सर हम मोहब्बत वाले लोग हैं सर. हम अमन वाले लोग हैं. आपने मोहब्बत दिया हम आपके हो गए सर. ये सब आपके हो गए. तो सर as far as the Gawadar is concerned, so it is the best of CPAC. So it is the art of CPAC, the function of art which pumps the blood inside the body. But sir, this art, the cells of ours are causes the necrosis. These are victim of necrosis. ये सेल जो गवादर की सेल जो गवादर के आर्ट्स के सेल आपके सामने बैठे हैं सर ये निक्रोसिस का शिकार है सर. गवादर हम एक अरसे से सर ऐसे पानी की इस्तेमाल पीने की इस्तेमाल ऐसी पानी है सर हमारा कि क्या कहें सर. फॉरेन कंट्री में वो पानी वॉशिंग के लिए भी इस्तेमाल नहीं होती लेकिन सर अफसोस कि यही पानी भी एक हफ्ते पहले खत्म हो चुकी है. अब सर मैं यहाँ पर खुश हूँ मैं लेकिन वहाँ मेरी बहन सर वहाँ मेरी माँ गड़ा सर में लेकर 2-3 किलोमीटर पानी की तलाश में निकली है सर. अगर एजुकेशन की बात करें सर तो गवादर सिटी के अंदर एक डिग्री कॉलेज है और सर मैं आपको क्या बताऊं बस एक ही सेंटेंस में उस डिग्री कॉलेज की जो लेक्चरर्स जो प्रोफेसर तो है ही नहीं. लेक्चरर्स की तादाद 12-13 है जो यहाँ की यूनिवर्सिटी में 84 की तादाद भी ज्यादा होगी. तो सर अगर स्कूल्स की बात करें तो वी आर chanting that every student should be in school, but when we visit any school, so definitely we will find that a single teacher is teaching 100 of students in the single class. Then why we are chanting? Then why we are calling? Then why we are taking their hands and showing this the way of school and college? If we cannot provide the facilities, so why we are saying that this is a school, this is the way of school, sir? हमें कोई हक नहीं बनता सर किसी बच्चे का हाथ पकड़े और उसको कि वो स्कूल है. सबसे पहले उसकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करो सर. सर यहाँ के जो फैसिलिटीज हमने देखे खुदा की कसम मैं यकीन नहीं कर रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान में सर मैं शेबाज भाई आपको सल्यूट करता हूँ सर. मैं आपको सल्यूट करता हूँ सर. मैं आपको सल्यूट करता हूँ सर. अगर खुदा की कसम सर अगर आप जैसा एक लीडर भी हमारे गवादरी हमारे बलूचिस्तान में होता तो आज हम इस सिचुएशन में सफर नहीं करते सर. यू आर सर अमेजिंग सर. I don't want to explain you sir. You are entire, you are complete sir. सर प्लीज सर
हम तो दुआ करते आ रहे हैं, आप भी दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारी हुकूमत, हमारी बलूचिस्तान की हुकूमत को हिदायत दें। तो सर आज मैं आप सब के सामने, सब मीडिया के सामने मेरे में जो बातें कह रहा हूँ उसे मेरे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ तक जरूर पहुंचाएं कि हम गवादरी तरस रहे हैं पीने के पानी को। और ये मीडिया शो कर रही है कि गवादर कल का सिंगापुर, कल का सिंगापुर, कौन सा सिंगापुर? सिंगापुर तो तालीम, यार मुल्क तो तालीम की बेस से बनते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ सीपेक के रोड हमें दिखाई देते हैं, लेकिन तालीम को कोई एक स्ट्रक्चर हमें दिखाई नहीं देता। तो सर प्लीज वी रिक्वेस्ट यू सर, मैं खुदा की सर आपसे बात कर रहा हूं, अब मुझे यकीन है कि आप कुछ करेंगे सर, आप कुछ करेंगे सर, इंशाल्लाह सर, मुझे वो पे यकीन है सर। आप और सर एक और सर रिक्वेस्ट सर, जो मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं सर, वो गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं सर। हमने जब यहाँ की फैसिलिटीज, यहाँ की यूनिवर्सिटी जो देखी, तो सर हमारा भी दिल करता है कि हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ें, हम यहाँ यही पढ़ें सर, क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल की यूनिवर्सिटी है सर। बेहतरीन प्रोवाइडेड, ऑल द फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड, क्योंकि आप हैं सर। तो सर ये एक रिक्वेस्ट है कि सर आप भी कुछ ऐसे स्कॉलरशिप तय करें कि हमें भी चांस मिले कि हम यहाँ पर पढ़ें सर। थैंक यू, वेलकम सर। शुक्रिया। एक तो आपने कुछ नाजिश के बारे में कुछ अच्छे कलमात फरमाए, वैसे तो तय तो नहीं हूँ, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। और यही कहूँगा कि मेरी दुआ है मैं आपके इस सोच है और जोश है उसको पूरा कर सकूँ। और जो आपने बाकी जो बातें की हैं वो बिल्कुल पानी के हवाले से और दूसरी हवाले से बड़ी फ्रैंक आपने डिस्कशन की है। आई रियली अप्रिशिएट योर फ्रैंक डिस्कशन एंड विदाउट कन्विंसिंग वर्ड्स। तो इंशाअल्लाह जहाँ पर आपने जो बात मैं कर चुका हूँ, इंशाअल्लाह आपको बलूचिस्तान का कोटा और बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सलाउद्दीन है और मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कवाले से ताल्लुक़ रखता हूँ। सलाउद्दीन, सबसे पहले हम ममनून मशकूर हैं हुकूमत पंजाब के कि जिन्होंने हमें इस तरह का स्टडी टूर मुहैया किया, और यहाँ के लोगों ने जो हमारी खिदमत की उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है उनकी तारीफ के लिए। और मैंने एक छोटा सा मजमून लिखा है, ये मजमून नहीं हमारे जज्बात हैं, मैं सुनाना चाहता हूँ। लफ्ज़ माया की जाल है और मोहब्बत को लफ्ज़ों के सांचे में डालना अरकज़ो नाकस की बस की बात नहीं। और मुझ जैसे कम पहन के लिए तो ये लोहा चबाने की मानंद है। मोहब्बतों का शहर यानी लाहौर कितना दिलनशीन है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इसके मंजर खूबसूरत है, वो तो हैं, लेकिन शहरों को खूबसूरत लोग बनाते हैं। वो शहर तब तक खूबसूरत नहीं हो सकते जब तक उसके लोग कुशादादिल व दिलनशीन ना हो। और यहाँ मुस्कुराहट हर चेहरे की जीनत है, और यही मुस्कुराते चेहरे इस शहर की खूबसूरती है। ये मुस्कुराहटें फर्जी व दिखावा नहीं, बल्कि उनकी रूहों की पाकीज़गी हैं जो हर लम्हा उनकी वजूदों से टपकते हैं। और इनमें अपनायत की और महक है जो और किसी गुलिस्तान में शायद पाया ना जाता हो। उनकी दरियाए मोहब्बत में गोताज़नी के बाद मैं अपने आप से आंखें मिला नहीं पा रहा हूँ, और शायद हमारे यहाँ से हर कोई इनकी मोहब्बत जाम पीने के बाद अपनी आंखों से आंख न मिला पाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। जी मेरा नाम यास्मीन अब्दुल्ला है और गर्ल्स डिग्री कॉलेज से ताल्लुक़ रखती हूँ। जैसे कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि अगर आपको कोई चीज़ कंपेयर कर रही है, मीन सोच सोच के आप परेशान हो रहे कि
ये हम सवाल पूछे या ना पूछे, जो भी आपके जहन में आ रहा है, जो आपको कंपेल कर रहा है तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं बैठी थी, एक्चुअली मेरा कोई इरादा नहीं था सवाल पूछने का, लेकिन बचपन से मेरे जहन में एक सवाल है कि ये जो गवादर इतना डेवलपमेंट कर रहा है, ये जो सीपैक इसमें आ रहा है, इसका जो सीपैक बड़ा रोल इसमें प्ले हो रहा है और बहुत ही डेवलप हो रहा है, न्यूज़ हर जगह देखे तो सीपैक। तो अगर हम सीपैक को छोड़ के गवादर को देखें, उस बेसिक नीड्स को देखें, मैंने उसके प्रॉब्लम्स को देखे, जैसे कि मेरी फ्रेंड हलीमा ने कहा था कि एजुकेशन का सिस्टम तो बहुत ही ख़राब है और बॉयज़ साइड से भी थोड़े कंप्लेन आए थे कि वाटर तो इतना गंदा कि पीने के लायक भी नहीं है। लेकिन जैसे कि हम सबको पता है कि सर्वाइव तो करना है, अगर पानी नहीं पिएंगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे। और वो दोनों तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी तो पूछे ही मत, पूरे दिन 2 या 3 घंटे होते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का तो पता ही नहीं है। इवन कपड़े प्रेस करने के लिए भी बिजली नहीं होती। जब VIPs आते हैं या मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं तो बिजली ऐसी आती है, अगर तूफान भी आ जाए तो चले नहीं जाती। तो मैं यही कहती हूँ कि अगर आप आते हैं कि बिजली आती है, आप जाते हैं प्लेन में, अभी एयरप्लेन में बैठे नहीं, बिजली चली गई, ये क्या है? ये सोचने पर बहुत मजबूर करता है। तो मैं बस यही कहूँगी कि अगर हम किसी मुल्क को, अगर सिटी को चाहते हैं कि वो डेवलप करें, सो ऑब्वियसली हमें उनके जो बेसिक नीड्स होते हैं उन्हें, अगर हम लाहौर आए हैं इतने शॉक्ड हैं ये क्या है वो क्या है, इतना डेवलपमेंट है, सीपैक तो वहाँ है, डेवलपमेंट यहाँ क्यों हो रही है? तो ये मसला है, क्योंकि यहाँ बेसिक नीड्स को देखा जाता है और वहाँ बेसिक नीड्स को छोड़ के सीपैक के पीछे पड़े हैं। थैंक यू मैडम। थैंक यू। बात ये है बेटी के सीपैक और नो सीपैक, ये पानी, ये दवाई, ये तालीम, ये आप सबका हम सबका बुनियादी हक है, इस पे कोई दो राय नहीं। अगर खुदा न खास्ता सीपैक न होता तो तब भी आपकी बात would have been as relevant as today. अगर as luck would have, अल्लाह ताला को कुछ मंजूर ऐसा था, सीपैक आया और वो पाकिस्तान की, मैं भी आपको 2 मिनट में सर्जन कर देता हूँ कि पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला ने खैर बरकत का एक बहुत बड़ा एक सामान पैदा कर दिया है। ये बात मैं कर चुका कि सीपैक और नो सीपैक बुनियादी जिंदगी की जो सहूलतें हैं, वो पानी है, वो बिजली है, तालीम, इलाज, वो आपका सबका हक है, और वो नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ कि बहुत कोई जवाब नहीं कि वसाइल 70 साल से जिस तरह भी थे मिलते रहे, होते रहे, वो किधर गए। भारत की एक अलग डिस्कशन है। मैं यस करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा लगा कि सीपैक तो वहाँ है, तरक्की यहाँ हो गई, लेकिन ये बेटी जब सीपैक नहीं था तो लाहौर में बस मेट्रो चल रही थी, बन गई थी। जब सीपैक नहीं था तो अपना पंजाब में, गुजरावाला में, डेरा गाजी खान में, बाबरी नगर में, सियालकोट में नए मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बन गई थी। जब सीपैक नहीं था तो अल्लाह ताला के फजल करम से इस सूबे के अंदर सड़कें बन रही थी, दान स्कूल बन रहे थे। सीपैक का जो इम्पोर्टेंस है वो तो उसके ऊपर मजीद करने की बात नहीं कि वो बेगुनाह है, मगर क्या कौमें दुनिया में जिन्होंने तरक्की के उन्होंने झंडे गाए, क्या वो सीपैक या उसके उन्होंने मेहनत थे? नहीं, कौम की अपनी
मिसाल आपके सामने है कि सफा हस्ती से शहर को शहर बिल्कुल खत्म हो गए, मिट गए, they were raised to ground। मगर 50 साल में उन्होंने अपनी शिकस्त को, वो रोए नहीं, शिकस्त को उन्होंने हिम्मत और मेहनत में बदल दिया और कई उन्होंने सीपैक पैदा कर दिए। तो सीपैक में तो यकीनन इस कौम को बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने सहारा दिया है, लेकिन बिलाखिर सहारा वही है जो हम अपनी मेहनत से आगे लेके बढ़ेंगे। इस हवाले से जो आप बात करिए, जब सीपैक के हवाले से, जब गवादर पोर्ट बननी है, वहाँ पर बन रही है, एयरपोर्ट बनना है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट बननी है, वहाँ पर बेपनाह अरबों डॉलर की सरमायाकारी बननी है, तो वो जो बिजली और पानी की बात कर रहे हैं इस हवाले से, वो इसी तरह है कि मंगला बना था तो वहाँ पर इटालियन एक बन गई थी, कॉलोनी बनी थी, जहाँ पर दुनिया की बेहतरीन सहूलतें वहाँ पर थी। तो उसका यकीनन उसका अपना एक था, इम्पैक्ट था और कुर्बजवार की सारी फायदा पहुँचा। वो कॉलोनी, वो इटालियन चले गए, वो आज पाकिस्तान की मलकियत है, हमारी प्रॉपर्टी है। वहाँ पर जब ये काम सारे होंगे तो लामाला जिन्होंने आप काम करना है उनको साफ पानी की जरूरत है, तो यकीनन वो आपको मिलेगा। मैं पहले बता, डोंट टेक मी रॉन्ग, डोंट मिसकंस्ट्रू मी, कि बुनियादी जिम्मेदारी तो बाहरी स्टेट की है, नहीं मिली तो बड़ा गलत हुआ 70 सालों में। लेकिन मैं अब सीपैक के हवाले से जो आप कह रही थी कि वो सीपैक वहाँ पर और तरक्की यहाँ हो रही है, वहाँ पर उसका बेपनाह उसका इम्पैक्ट आएगा, बेपनाह उसका इम्पैक्ट आएगा। पानी भी वहाँ पर बेहतरीन होगा, शायद लाहौर में भी ऐसा पानी अवेलेबल ना हो, क्योंकि वहाँ पर जिन फॉरनर्स ने आना है उनको हाई क्वालिटी, उनको खुराक और हर चीज़ चाहिए होगी, तो उसका वो पानी अंदर भी रहना होते हैं। उस शहर को आबाद करना है, इंडस्ट्रियल स्टेट बनी है तो उस शहर को आबाद करना है, एयरपोर्ट नया बनना है, नया $150 मिलियन, और वो ग्रांट है। सीपैक में अगर कोई ग्रांट है तो गवादर एयरपोर्ट की, ये दिस यू शुड नो, वो गवादर एयरपोर्ट की वो ग्रांट है $150 मिलियन, उसमें बनना है। वहाँ पर आपको जॉब मिलेंगे माशाल्लाह, we will probably be receptionist at the airport, who knows, इतनी अच्छी चीज़ करती हैं। वो बच्चे जो है जो बात कर रहे थे उनको शायद they will become wonderful officers over there in industrial state। You will probably, engineers will be accommodated, electrical, mechanical, managers जिन्होंने कोर्सेज किए होंगे। सो मेरी गुजारिश आपसे ये है बड़े दर्द दिल से कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, हर लिहाज से उम्र में मैं एक खादम हूँ, मैं दिल की अथाह गहराई से आपको कह रहा हूँ कि खुदाए बुजुर्ग बरतर की कसम है, सीपैक पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला की एक कमाल मेहरबानी है।